बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, कहते हैं लिबास इंसान की शख्सियत का अक्कास हुआ करता है और अगर इस अक्स को बनाने वाला कोई वाकई माहिर हो तो फिर शख्सियत को 4 नहीं बल्कि बसा औकात 8-8 चांद भी लग जाते हैं। हमारी आज की मेहमान भी एक ऐसी माहिर हैं जो न सिर्फ फैशन की दुनिया में नया रंग, नए ढंग लेके आई हैं, बल्कि आए रोज़ नए ट्रेंड्स भी मुतारफ़ करवाती चली जा रही हैं। उभरती हुई फैशन डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर माहम नईम। माहम साहबा, इससे पहले कि हम आपके मलबूसात की तरफ आएँ, आपने सुना होगा गुज़िश्ता दिनों एक खबर बहुत वायरल हुई जिसमें बताया गया कि एक शौहर ने बीवी को बचाने के लिए मगरमच्छ से टक्कर ले ली। बहादुर शौहर ने यह कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, आइए आपको दिखाते हैं। ਲੈ ਵੀ ਜੀ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਸ਼ੌਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਈ ਓਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਟਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਤੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਚੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਈ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਹ ਪਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਸਾਹ ਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਸਾਹ ਜਿਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮਾਮੂਲੀ। ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਡੰਡ ਸਾਏ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਬਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੰਦ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਦੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਕਰ ਬੇਵਕੂਫ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣਾ CNN ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ, BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੀਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। बस करो, तुसी एडा एहसान ना करो जिले ते। जिले दा नाम पहले अखबारां च आ चुका है ते जिला लोका गुल चगला ना मार के तू बुढ़ी गलती नाल बचाई है। जिले दा वैसे ना हो गया, पिंड दा नाम रोशन करदे जिले ने। लोकी दूरों दूरों पुछण आंदे कि जिला तेरे पिंड दा फखर बन गया मेरा है। मेरा तो दिल करदा पग ला के ना मैं जिले दी फोटो सिर ते रख लवां। चौधरी साहब, जिले दी वफावां तो तुसी भी कुछ सीखो। ते तू भी जा ना दरिया ते। ले मैं दरिया ते की लैन जाना, मेरे ते घर मगरमच्छ बैठा है। अगर मच्छ हुंदा ना मैं फिर तैਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਜੀਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਚੋਈ ਮੈਂ ਗਇਆ ਹੀ ਗੋਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਾਏ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਚੋਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਦੰਦੀ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਐ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਮਗਰਮੱਛ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। चौधरी बंदा बाड़ अच्छा, फिर की होया? मेरी बुद्धि ने चीख मारी। अच्छा। चीख मारी, यो यो ये मगरमच्छ ने? नहीं आए, भाभी आए। अच्छा, भाभी तेरी भाभी ने? तेरी आए, चोई आई। अच्छा, भाभी ने। भाभी की कहंदी सी लियाओ लियाओ की लियाओ नहीं अच्छा लिया, बचाओ बचाओ कह रही सी, यही कह रही सी ना। पिंड च 2 ही ते बंदे ने जेड़े भाभी दी गल समझदे, कह दे कि मैं ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹੂੰ। ਹੈ ਓਏ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਕੁੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ। मैं क्या कुत्ते आया हूँ मगर मैं चंगा इको वही खाइएगा, ये पा देंगे पाएंगे। मैं बहुत दो जाई दो। अच्छा। मगरमच्छ हल ओ दो मगरमच्छ पीछे कुत्ते विच में। ते बुड्ढी किथे गई तेरी? बुड्ढी खा गया ही हो यार, वो तो बच गई है। ओ यार ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਭਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿੱਥੇ? ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੋਵਾਂ ਧੋਖਾ ਚੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੋਏ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
जिले जो है कुत्ते की मगरमच्छ लड़ाई हुई ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਬਚਾਈ नहीं बुढ़ी ताई बजियां वो लड़ पे मैं लैके दो पे ਚੌਧਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਮਗਰਮੱਛ कुत्ते मुंह से ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਥੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵਾਂ ਉਸ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਅਕਲ ਕਿੱਡੀ ਸੂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਮੈਂ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ तो साहब मैं बुद्धि रह गई दो गया ਅੱਛਾ ਬੁੱਢੀ ਲੱਗ ਦੌੜ ਗਿਆ अद्धे आज पहुंचा मेरी बुद्धि कहनी मेरी जुत्ती मगरमच्छ दे मुंह जाएगी ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ मैं कहीं लेके आओ ਇਹੋ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ आए ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿਧਰੇ मैं गया चौधरी साहब वापस ਬਸ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ मैं पीछे धोया बाबा जी मगरमच्छ दे ਅੱਛਾ मैं मगरमच्छ दा मुंह चीए मैं ओदे मुंह च मुंह पाया ਅੱਛਾ पा के मैं कहा मगरमच्छा मेरी बुद्धि दी जुत्ती किते ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ यार गल सुनियो यार मेरी मगरमच्छ दे अंदर धोने इस वेले गल सुनियो यार ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰ ਉਸ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ अंदरों आवाज आई चोई तेरी बुद्धि दी जुत्ती कुत्ता रह गई ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ मैं कहा के से बाहर कजे ਅੱਛਾ फिर बड़े नाम ने ओदा मुंह बंद कीता है नहीं कहा के ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਗਿਆ हाँ फिर मैं गया चोई कुत्तियां ने मगर ਅੱਛਾ 7 कुत्ते अगे अगे ਅੱਛਾ चोई मैं कल्ले ही ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਭਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ हूं मैं समझ नहीं आई जुत्ती के कुत्ते दे मुंह च ਹਾਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈ ये वाकया समझ यार जाती मैं भाई चोई मैं पहला कुत्ता फये ਅੱਛਾ मैं कहा मेरी बुद्धि दी जुत्ती जे ਅੱਛਾ वो भी अगो मेरे वांगू थता ही ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ओ यार थता ही ਅੱਛਾ यार ਥੱਤਾ ਸੀ और मैं कहा मेरी बुद्धि दी जुत्ती ਅੱਛਾ कहना मेरे को ही मैं छदे तो मैं दूजे मगद दोए ਅੱਛਾ दूजा फये ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੌੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ यार चोई स्कीम वे आए दूजा कुत्ता फया ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਅੰਜੀ ਸੱਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਮੁਕਾ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਵੇਂ ਫਇਆ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਯਾ ਬੱਬੂ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਤੀ ਨੰਗੇ ਪੈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਇਹ ਦੱਸ ਮਗਰਮੱਛ ਆਂਦਾ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਆਏ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਯਾਰ ਨਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਚਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਗੇ ਕਿ ਨਾ ਆਏ ਯਾਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਆਣ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਸੁੱਟੋ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾ ਕੰਮ ਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਗਰਮੱਛ ਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं गया डॉक्टर को पति गया है ਅੱਛਾ वो 7 रुपए मगर मैं पति गिरा आया ही होते कहना मैं दंद बेच ਯਾਰ आएगा बाहर ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नहीं उनका तो बंदा उन तो दहिया खाया दंद सारे कौन ने भाभी तेरी दी बांह खुबे सारे कमाए वेही हो के टपी पोचा मार के गाया गांधी फे ओ ए ए आ ओ ए आ ई ई ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਡਈ हूं तो मैनू आके कहती है हाँ रिश्ते में तो हम तुम्हारी मां लगते ना मैं माया पी 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 ਉਹ ਦੰਦ ਪੀੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं जो सवेरे उठ के उन्हें पेस्ट कर दी वो कहनी कितने बचाया मगर मैं बगैर पेस्ट तो रोटी खांदा पिएगा ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਮੱਛ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ यार पता नहीं मेरा टाया सोया यार पैदा हुंदा पूरे दरिया च ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੇ ਨਾਜ਼ੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਈ ਲੈਣ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੈ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਧੋਪ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਗਰਮੱਛ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਧੋਤਿਆ ਰੁਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਂਦਾ
तू जाके अपनी बीवी नु कह ओदे दंद वापस करे, शायद दंदा दी वजह तू रह गया होवे। यार नाराज ना हो यार, सत्ता सुत्ता लगियां बचाए हूँ उनसे पति पुति के आंदे 2 दिन ठीक हो जाएगा, फिर कहीं कपड़े तो यार दानी नहीं है यार, तुम ट्राई कर लेंदे ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। चौधरी किड्डा मकार ते बेहया आदमी है तू है, वेख नहीं है तेरा बंदे ही नहीं, इन्हें तेनू मगर मस्त देखू सुट्टन ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ओए मैं मर जावां, साला तेरा पल्ले कख ना रवे, मर जावे है, जिंदा ना जीवे आ। तेरी खिदमत कर के ते तू मेनू आज मगर मस्त को सट्टन गया। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਸੁਧਰਾਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मैम, बेसिकली आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और उससे ज़्यादा आप का जो तारुफ है वो फैशन डिज़ाइनर का है, लेकिन आपकी इंस्टा आईडी पे जाके देखें तो आप फैशन डिज़ाइनर से ज़्यादा ट्रैवल व्लॉगर लगती हैं। ऐसे तो ही है। क्या ये टुरना फिरना शौक है या टुर फिर के कपड़े बेच दे हो, की कर रहे हो? नहीं, मुसाफिर ही हैं, तो बस इसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं कि मुसाफिर हैं और बस दुनिया घूम रहे हैं। अब तो इवन दो मैं पाकिस्तान से भी माइग्रेट कर गई हूँ, दुबई शिफ्ट हो गई हूँ, अच्छा। और बचपन से ही शौक था बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, तो बस ये है कि वो बुला लेते हैं। नहीं, तो हम ऐसा हर तो साल नहीं है में कि 2-3 यहाँ दफा पे चले जाते लोगों हैं। के कपड़े गलत सी देती हैं और फिर दुबई निकल जाती हैं। अगर गलत सीते होते तो वो नहीं ना बुलाते हमें बार बार अच्छा। अपने पास। नहीं, दुबई में तो अब सेकंड ब्रांच इंशाल्लाह ताला ओपन करने लगे हैं माशाल्लाह। दिसंबर में। तो भाई तो सीधे सीधे कपड़े होते सारे उनके, नहीं ना, वहाँ पर क्या फैशन है? कहाँ उनके कहाँ से जैसे जो, तो उनके तो थोड़े थोड़े होते हैं, पैसे कम लगा करेंगे अब। अच्छा माँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी आम घर का बंदा मतवसत फैमिली से या गरीब ख़ानदान का कोई चश्मो चराग या चश्मो चरागी ख़ातून जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में उसने कदम रखा और कामयाब हुआ हो। हमेशा एक एलीट क्लास से ही आते हैं ये लोग, इसकी क्या वजह है? दरअसल बात कुछ यूँ है कि मेरे दादा अबू कहते होते हैं कि तुम एक अच्छी बिजनेस वुमेन नहीं बन सकी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो किसी और को भी खाना चाहिए, जो हम पहन रहे हैं हम कुछ ऐसा बनाएं कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, हमने 5 साल पहले भी मैं इसी जगह पे बैठी हुई थी, तब हमारे साथ महमूद साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरी बुटीक में 3000 से एक प्राइस स्टार्ट होके ना 30 लाख तक भी लहंगे जाते हैं, और उन लोगों के लिए भी हमने ड्रेस बनाया जो 3000 में भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या किसी के दिल में ये नहीं रह जाए कि हम यहाँ पे गए थे और यहाँ से खाली हाथ निकल आए। हाँ। अच्छा मैम, 30 लाख वाला दुल्हन का लहंगा तो समझ आता है, जो 3000 वाला आपने लहंगा तैयार किया दुल्हन का, वो दुल्हन नहीं पहना था? नहीं, दुल्हन ने नहीं, ब्राइडल ड्रेस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल वेयर की बात। नॉर्मल वेयर। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? हम क्या लगता है कभी कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब हम देखेंगे कि आम नॉर्मल घरों की लड़कियां जो ब्राइडल होती हैं वो सस्ता ड्रेस पहन सकेंगी, उनका सिर्फ ख्वाब नहीं रह जाएगा कि हमने इतना महंगा ड्रेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, अब वो वक्त आ गया, अब लोग रेंट आउट करते हैं, वो पहन सकती हैं। जो मिडिल क्लास है या जो गरीब खातून है बेचारी, उसको आपने रेंटल पे लगा दिया? नहीं, हमने तो आज तक रेंट पे दिया ही नहीं। नहीं, लेकिन दिया नहीं है। आप सजेस्ट तो रेंटल ही कर रही हैं और ना? सर माड़ी सी खूंगी लग जाए तो पूरे पैसे लेंदे ने। अच्छा। हाँ कि यार रखो ड्रेस तो पैसे पूरे दो। ऐसा वैसे मुझे पता ही नहीं है, पर हमने कभी रेंट पे दिया नहीं, पर हम ये मेरे लिए तो यही है, मैं कहती हूँ जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। पर एज अ फैशन डिजाइनर अगर मैं देखूँ तो ठीक है, पर अगर एज अ बिजनेस वूमन भी देखूँ, मैं तो लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि कभी भी इतने ज़्यादा पैसे अपने ब्राइडल ड्रेसेस पे मत लगाएं। 1 घंटे के लिए 2 1 घंटे के लिए हाँ। पहनना होता है, उसके मतलब बाद लोग वो मुझे बेकार है। देखते हैं बैठ के, मतलब आप वाकई ये बात करिए, मैं कहती हूँ हाँ, आप अपनी बेटियों को वो चीज़ बना के दें जो उनके काम आएगी। मुझे शादी के ज़ाती तौर पर शादी के अखराजात में जो सबसे फजूल खर्चा नजर आता है ना, वो ब्राइडल ड्रेस पे आता है, जो दोबारा नहीं पहनना होता, और वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी ये याद है, और वो याद सारी जिंदगी अलमारी में टिड्डियां खाती हैं। वो टिड्डियां पहले फिर भी माइंड जो थी वो संभाल के रख लेती थी, अब मुझे लगता है जो न्यू जनरेशन हमारी माशाल्लाह से आ रही है, उनको तो तमीज़ और तहजीब नहीं है कपड़ा पहनने की। मैं सबके मुंह पे बैठ के कहती हूँ, जो अच्छा। हमारी माओ ने अपने लहंगे संभाल के रखे हुए हैं, जिनकी शादियां भी 2-3 सालों में हुई हैं, उनके लहंगे उससे ज्यादा खराब हालत में होंगे, मैं पक्का कह सकती हूँ। हमारे घरों में होता ही ऐसे, हम फ्रिज नहीं लेकर आते ना,
फ्रिज गल सड़ जाती, ओदा डब्बा स्टोर चों जी नवा पिया हुंदा। आपका सबसे सस्ता ब्राइडल ड्रेस कितने का है? जैसे कि आपने बताया 3000 का आप नॉर्मल ड्रेस बनाती हैं। हाँ बना देते हैं। सबसे सस्ता ब्राइडल ड्रेस कितने का बनाती हैं आप? सच सच बताना वो मैं बनाती ही नहीं। सच बताना है। नहीं वो कहती है मैं 250 बनाती तक तो नहीं बना नहीं बना देते हैं, 250 तक बना देते हैं, 250 तक बना देते हैं। 2,50,000 बड़ी बात, महंगा ड्रेस लैके तो बाद चो 3 महीने बाद OLX ते ला देंदे ने। सबसे सस्ता। सस्ता ले जाओ। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। हाँ। देखिए हर चीज ही एक्सपेंसिव कर दी उन्होंने, नीडल से लेकर एंड तक हर चीज ही एक्सपेंसिव हो गई है। सच बताऊं तो जो दिल में सवाल उठता है वो यही है कि जितने भी पैसे लिए जाते हैं ब्राइडल ड्रेस के नाम पे, उसका मेरा ख्याल है कि शायद 20% जो है वो आपका मटेरियल होगा, मटेरियल की प्राइस होगी, बाकी तो आपके नाम की कीमत होती है ना, ब्रांड की वैल्यू होती है। सच्ची बात है। हाँ, आप इस बात का तो इकरार करेंगी ना? हाँ, हम इतराफ करते हैं। करेंगी? पर सब बहुत से लोगों को पता है कि हम इसीलिए चला रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम इससे बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं। कि मेरा और मेरी सिस्टर का ब्रांड है और मेरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। इससे जितने भी पैसे आते हैं वो हम कुछ बच्चियों की शादियों में लगा देते हैं, और किसी काम पे नहीं लगाते, बस शादियों पे लगाते हैं। और जिन बच्चियों की शादियां करती हैं आप लोग, वो जी। फिर उनके जो ब्राइडल ड्रेस है वो खुद बनाती हैं? खुद ही देते हैं उनको। वो 300 रुपए वाला? नहीं, अच्छे हाँ। वाला। अच्छे वाला। तो बस ये एक शौक है जिसे अच्छा, कंटिन्यू ये रखा शौक हुआ है कब बस। पैदा हुआ आपको अंदाजा हुआ कि ये जो जरासीम है मेरे अंदर मौजूद है फैशन डिजाइनिंग के? फैशन डिजाइनिंग के ऐसे था कि हमारे सारे फैमिली में सारे, मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर, मेरा भाई भी डॉक्टर, सारी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बने, एक मैं और एक मेरी बहन। लेकिन दोनों का काम तो सुइयों वाला है ना, वो टांके लगाते हैं, आप कपड़ों को टांके लगाते बस हैं। ऐसे ही है। तो मैं बस वो कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इवन दो जब मैंने अपनी FSC कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने तो बस रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने तो नहीं आगे पढ़ना। वो कहते क्यों? मैंने कहा मैंने बिजनेस वूमन बनना है, बस मुझे शौक था बिजनेस वूमन बनने अच्छा, का। सही। तो बस तो बिजनेस वूमन में आप स्पेसिफिकली फिर इधर क्यों आई, फैशन डिजाइनिंग में? कोई और कारोबार क्यों नहीं अब शुरू और करा? कारोबार अब स्टार्ट कर दिया है, आगे से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। अब और ਲਾਸਟ स्टार्ट कर 250 दी। ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। आप जब ये मलबूसात रूसी तैयार करती हैं तो आप दुल्हन की पर्सनालिटी को देखती हैं या उसकी थीम को देखते हैं? अब तो थीम भी आ गए अब हैं तो ना, थीम्स भी, कि अब जी तो बहुत फंक्शन की कुछ आ गया थीम जी। क्या है, उसके जी। मुताबिक उसका ड्रेस तैयार करती हैं या उसकी पर्सनालिटी को देखती हैं? मैं सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ। हम्म। गुड। ये नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आई और वो कहती है मुझे, मैं उनसे पूछती हूँ आपका बजट क्या है, आप हमें बताएं। या कोई हमें कह दे कि हमारा ये बजट है, ये बजट है, ये बजट है, तो और वो चीज़ दिखा रही हो जो उसको मुझे पता चल जाता है ना कि इसको अच्छी लगेगी ये नहीं लगेगी, ये इस ड्रेस को कैरी कर भी लेंगी ये नहीं कर लेंगी, कि एट द हाँ। एंड क्या लोग ये पूछते हैं कहाँ से बनवाया ड्रेस। नहीं कभी ऐसा हुआ कि दूल्हा जो हो वो हमारे शजर जैसा हो, बड़े दूल्हे आपने ड्रेस बना के दिया हो, अचानक आपने देखो कि दूल्हा ऐसा है, तो आपने लड़की को कहा नहीं पहना पैसे ही रोड़े तू। हसीना के नहीं कहा कभी। नहीं नहीं शजर भाई ठीक लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्र शुक्र सही है। अल्लाह पाक। आपकी शादी हुई है? मैंने आपसे पूछा है, मेरे बारे में तो पूरे सोशल मीडिया को पता है। पर मेरे बारे च भी पता है, मैं बच्चे अपने ही लेके जाना, लोगों दे नहीं। तो आपने अपनी बीवी को कितने का सूट लहंगा दिलवाया? मैंने उसको ये तो अबू थोड़ा वो अबू ने ला के देता होगा। नहीं वो मैंने, वलीमे वाले दिन का तो दिलवाया था हाँ वो ना। दिलवाया था। वो बहन हमने लिया था मेरा कल, मुझे याद है 90,000 रुपए का, नहीं 90,000 रुपए का। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। इनमें से किसकी दुल्हन का लहंगा तैयार करना पसंद करेंगी? ओके। ऑप्शन नंबर 1 शेख रशीद अहमद, ऑप्शन नंबर 2 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 3 ब्रैड पिट, ऑप्शन नंबर 4 बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी। देखे, अच्छी बिजनेस वूमेन है। आप चाहती हैं उनकी तो होनी नहीं और मेरे पैसे रुके रहे। गुड टू सी यू। पैसों की जगह पे आपको नारा अच्छा मिलेगा, पाकिस्तान खप्पे खप्पे अच्छा, खप्पे। ये बताएं कि इस टाइम आउटलेट जो है वो आपके नॉर्मल कैजुअल वेयर की ज़्यादा अच्छा बिजनेस है या ब्राइडल में अच्छा ज़्यादा बिजनेस है? हमें कौन सा ओपन करनी चाहिए? आपकी कोई अगर मुझसे पूछे तो हाँ, तो मैं कभी भी उसे नहीं मशवरा देती। मैंने आज तक कभी किसी को ओपन करने का मशवरा नहीं दिया, बुटीक को कभी भी नहीं दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये खुद काम कर रही हैं इसीलिए, हाँ। पर मैंने आज तक 3 लोग हैं, अगर जब वो मेरा शो देखेंगे तो कहेंगे वाकई सही कह रही हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे सोशल मीडिया के,
उनको मैंने मना किया था पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और 2-3 महीने बाद ही उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अच्छा मैम, कई लोग जो हैं, ख़ास तौर पे कई ख़वातीन जो अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं मैंने देखी हैं, वो ये बिज़नेस करती हैं कि यहाँ पे आउटलेट खोलने की बजाय वो अब्रॉड भेजती हैं यहाँ से जी और सारा ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। जी। उसमें बाज़ तलख तजर्बात भी हैं, अच्छे नहीं हैं, पेमेंट के हवाले से हो गए। जी बहुत ज़्यादा लेकिन होते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी कि करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस ऐसा? करना चाहिए पर जिनके साथ ट्रस्ट पे ऊपर ही है और ट्रस्ट तो आजकल लोग तोड़ने के लिए लगता है पैदा हुए हैं, पर सोच समझ के मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो वो इस मैदान में मत कूदे। बस मैं पेमेंट लोगों को यही एडवांस मशवरा लेनी दूंगी। चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? एडवांस कोई पेमेंट नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। किसी को हम कैसे, अगर आप मुझे कहे मैंने काम करना है और आप मुझे कहे पहले मुझे एडवांस पेमेंट कर दो, तो मैं आपको यही कहूंगी ना कि पहले मुझे अपना काम दिखाएं, ऑब्वियस सी बात है। मैम ये बताइएगा, ये जो एक जुमला बोला जाता है कि फलां शख्स को ड्रेस कैरी करने का सलीका भी आता है, जी इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत ही कम लोगों को मुझे लगता है कि कैरी करना आता है। नहीं, कैरी करना क्या मतलब? बैठा हुआ है तो बाल नहीं पड़ने देने या क्या मतलब? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਚ ਸਾਲਣ ਇੱਥੇ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं, इसको मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये इसका बहुत क्या मतलब है कि हाँ। ड्रेस को कैरी करने का सलीका? व्हाट डज इट मीन? ये बड़ी लंबी था एक टॉपिक है, उसके ऊपर बात शुरू हो जाएगी। जैसे ये है, देखिए इन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है ना, तो कितने तरीके इनको से कैरी नहीं करना आ रहा नहीं, आपका उन्हें मतलब? कैरी करना आया हुआ, मैंने पहली अच्छा। नजर में देख लिया था। शुक्र है, मैं तो आखे ले भी कम खराब हो गया। नहीं नहीं, आप बड़ी माशाल्लाह सलीके वाली हो, आपको पता है कि डिजाइनर को वापस भी करना है। ये बात हो रही थी, आपने पूछी थी ना कि किसी को पहनना ओढ़ना आता है कि नहीं आता। कुछ कपड़े ऐसे हमारे पास वापस आते हैं कि मैं कहती हूँ इनको क्यों दिए थे। हाँ, इनको पहनना ओढ़ना और मोड़ना आता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि मोड़ना आता है। अच्छा माम जी, मेरे खालू का लड़का है, बहुत बड़ा डिजाइनर है। माशाल्लाह, रियली? जी जी जी। कहाँ पे होते हैं वो? वो बताता हूँ, वो अरब में होते हैं। अच्छा। वो ऊंट के मुंह को जो छीकू नहीं लगाते, सबसे पहले उसने मुतारफ करवाया था। और सबसे पहले इसके खालू के बेटे को किसी ने कहा छिकू मुंह। हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें उसने मुतारफ करवाई हैं। क्या? ये कफन को सबसे पहले जेब मेरे खालू के लड़के ने लगाई थी। वाओ, ग्रेट। आपको पता है वो जो लंबे लंबे जुबे पहनते हैं अरब में, वो डिजाइन उसने ही किया था। ये तो सैडा तो तुम दोवां पासे पाड़ के कमीज बना ली। बड़ा मेहनती है वो लड़का। ओ लाचे को पहली दफा जिप उसने लगाई थी। ते आजकल कितने होंगे? वो दुबई दी जेल च हुंदा जी। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ अपनी कैद सी रहा। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। फिर आऊंगा बज़्म में तेरी एक नया फलसफा लेकर, वाह वाह। फिर आऊंगा बज़्म में तेरी एक नया फलसफा लेकर, एक हाथ में अज़्म, एक हाथ में हौसला लेकर। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी बड़ी पुरअज़्म सी बज़्म की जानिब, वाह, जहाँ से बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट निकलता है। अज़्म से बज़्म। जी, वाह। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम, मैं मोहम्मद अंजुम फराज हूँ। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। आपका अपना है या? जी जी, मेरा अपना। आपने खुद लिखा है? जी। सोचा भी खुद है, लिखा भी खुद है, हाँ जी, और सुनाएंगे भी खुद? इंशाल्लाह। बड़ी बात है यार। बड़ी गल जी, अपना घर दा पालिया शेर सुनान घर दा पालिया शेर। इरशाद। जी इरशाद। इलाही आज ये फरमान लिख दे, हर खुशी मेरा शेर सुनने वाले के नाम लिख दे। वाह, वाह जी। अगर उस खुशी के लिए किसी की मौत चाहिए तो उस मौत पर मेरा नाम लिख दे। और अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ताला आपका साया भी आपके घर वालों के सर पे हमेशा कायम दायम रखे। आपके साथ आपके घर वाले ही बैठे हुए हैं? जी, मेरी मिसेज हैं। मिसेज हैं? अच्छा, कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया। फिर तंग आके तो नहीं कह रहे कहते? तो 1.5 साल से शायरी शुरू की है? जी। नहीं, शायरी बड़ी देर से शुरू की थी, दीवान अब मिला है उन्हें। फैसला अब किया। हाँ। कभी कोई शेर आपने बीवी को भी डेडिकेट किया है? ये बीवी के लिए लिखा था। ये बीवी के लिए लिखा था? और जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ओन है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी। मेरे दोस्त ने क्या ही शक्ल पाई है, आहा। मेरे दोस्त ने क्या ही शक्ल पाई है, जैसे ट्रक के नीचे गंडेड़ी आई है। एक शेर की दाद मिले ना मिले, चीख जरूर मिलेगी। और बेटा ये जो शेर आपका आप ओन है, तो इसके ओनरशिप भी आपकी है? जी। नहीं तो आपने बताया क्यों नहीं कि आप शजर के दोस्त हैं? शजर को कहना चाहिए जैसे ट्रक के नीचे कद्दू आया है।
तो आप किन के साथ आए हैं? मैं अपनी मम्मा के साथ और पापा के साथ आया हूँ। अच्छा, आपके साथ आपके अम्मी अबू बैठे हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा माइक दें अबू को, अम्मा को। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। तो ये बेटा आपका शायरी करते हैं जी? हाँ जी। माशाल्लाह, जबरदस्त शेर कहते हैं जी, और एक्सीडेंट भी खूब किया है। बड़ी बात। अच्छा, और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 20 years। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम तो आजकल बिल्कुल बिल्कुल ठंडा है, कभी अप कभी डाउन। इनको जरा माइक दें। क्या नाम है जी आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान अहमद। अदनान साहब लाहौर में ही प्रॉपर्टी के काम करते हैं जी। ये जो आप प्रॉपर्टी के काम में सबसे बड़ा जो इशू है, वो मेरी राय में वो क्रेडिबिलिटी का इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी कसम, तरह ही। कुरान, कलमा सब पढ़ देते हैं। ये तो आजकल आम है ना। अच्छा ये बताएं कि चलें, ये तो होगा ना प्रॉपर्टी का एतमाद, आपका आपस में मियाँ बीवी का एतबार और एतमाद कितना है? तकरीबन अभी तक तो मेरा ख्याल है 20 साल चल रहे हैं। 20 साल नहीं, एतमाद और एतबार के साथ चलें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चलें, थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लें, फिर कितना एतबार है कितना एतमाद है। आप जरा एक मिनट की होंगे। 1 मिनट के लिए जरा बाहर तशरीफ ले जाएं। ओके। अच्छा तैयबा साहबा, मैंने पहचान लिया है, और किसी ने पहचाना हो या ना, कि आपके शौहर ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ। जी जी। ठीक है ना? जी। अच्छा, ये जब आप किसी को बताती हैं कि मेरे शौहर ने ट्रांसप्लांट करवाए, बाल लगवाए हो, तो ये नाराज होते हैं आपसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खुद बताते हैं? हाँ जी। अच्छा, जब कोई अच्छा। पूछे तो बताते, वरना नहीं बताते। आज खुद नहीं बताते। अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल पे ये खास तौर पे टिकटॉक वगैरह पे ये किस तरह का कंटेंट देखते हैं जब अकेले बैठे होते हैं? फनी अच्छा। या न्यूज से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, मेरे खवातीन सामने तो ये देखते हैं। बाद ਵਿੱਚ जन्नत मिर्जा या डॉली ना देखते हो। अच्छा, आपको यकीन है कि ये खवातीन की वीडियोस नहीं देखते? नहीं नहीं, मुझे यकीन है देखते होंगे। मुझे यकीन है। नोरा को तो बहुत देखते हैं। तो फिर किस बात पे आप कह रही हैं कॉमेडी देखते हैं और पॉलिटिक्स देखते हैं? सारा कुछ तो आपको मेरे पता है। नहीं, देख के कॉमेडी करने लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। या सियासत करने लग जाते हैं। ऐसे ही है। शादी की सालगिरह याद रहती है? हाँ जी, वो तो तोहफा देते हैं? जी जी। ये बाजार में जाएं तो खवातीन को घूरते हैं? कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो देख लेते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। तो आप रोकती हैं? मैं पीछे से लगा देती हूँ एक। पीछे से लगा, बस अरे बाजार। चलते चलते आपने कोनी सेट की होती है। हाँ, जैसे अगर देखा- ड्राइव कर जैसे रहे हो उन्होंने तो देखा- कोनी सेट की होती है मैंने। हाँ, मैंने नहीं, क्या बात चलते है? चलते आप लगा देती हैं? नहीं, मतलब इतना भी नहीं लगाती। आपको अपनी आमदन बताते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, बुलाएं जी उन्हें। एक क्लैप ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है, तो आप दूसरों से छुपाते हैं या खुद बताते हैं? नहीं, यार नहीं, मैं देखो, नहीं छुपा रहा। जो चीज़ है वो है, नजर आ रही है। नहीं, खुद बताते हैं लोगों को? कोई पूछता है तो बता देता हूँ। पूछता है तो बताते हैं, खुद नहीं बताते वैसे? दुरुस्त जवाब। अच्छा, सही है। वैसे ये खुद बंदा कौन बताता है? वो मथे तो थोड़ा लिखे होता कि खबरदार ऊपर ट्रांसप्लांट है। सोशल मीडिया पे किस किस्म का कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं? तकरीबन कोई ज्यादा चॉइस नहीं है। क्रिकेट वगैरह देख लिया। कभी कोई नूरा कुश्ती देखी तुसी? नूरा कुश्ती नहीं, नूरा फतेह देखी। नहीं, बड़ी खूबसूरती से आपने बात गोल किया। देखी है? नहीं नहीं, मैंने गोल नहीं की, मैंने सीरियस बताया। आपको पता कि आगे से वो एक ऑप्शन आ रहा है कि जिसको आप देखेंगे वो भी आपको देखेगी। शादी की सालगिरह याद रखते हैं? जी। तोहफा भी देते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी देते। अच्छा, बाजार में जब जाते हैं आप या पब्लिक प्लेस पे, तो खवातीन को क्यों घूरते हैं आप इतना? जो तो घूरते हो तो सट किथे लगती ज्यादा। जब आप सामने से घूरते हैं तो राह रास्त पे कौन लाता है आपको? सामने देख रहे हैं तो सामने ही देख। मतलब भाभी सच्ची है। और कुछ हो ना, विकी साहब आई मरवान गए। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी आमदन जो है वो पूरी की पूरी सही सच सच बेगम को बताते हैं? नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बहुत अच्छे। अच्छा, भाभी दे डर तो ट्रांसप्लांट वाले वाल भी खलोते हैं ना। यार, ट्रांसप्लांट वाले बाल प्लास्टिक के नहीं होते भाई। और अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, सही जवाब दिए। जी, तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की।
जो मिलेगा दुरुस्त जवाब देने वाले को। वाह। तो सुहाना का आज का सवाल है, गौर से सुनना है आप लोगों ने। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम का उर्दू तर्जमा एक सब्जी बन जाती है जिसे हर घर में रोजाना खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है? सब्जियां जहन में लाके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, फिर मुल्क जहन में आ जाएगा। चले आसान तरीका बता देता हूँ। चले बहुत ही बड़ा हिंट दे देता हूँ। वो किसी ना किसी शक्ल में सब्जी जो है वो हर सब्जी में पड़ती है। चिली। चिली क्या बताएं ना, आपने जवाब दे दिया और खुद आपको पता नहीं है कि आपने जवाब दे दिया है। चिली मुल्क का नाम है। चिली। हाँ। हमारी आज की विनर सिया ब्यूटी क्रीम की जो है उनके लिए बहुत सारी तालियां। और जी अस्सलाम वालेकुम। शजर भाई आप शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैंने सोचा था जब आपसे मिलूंगा एक शेर का मतलब पूछूंगा आपसे। शेर कुछ यूं है, मगस को बाग में जाने ना दीजो कि ना हक खून परवाने का होगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈ। और सही जवाब के लिए लेफ्ट हैंड पे रजू कीजिए। उन्होंने आपसे पूछा है, आप बता दें। यार बचपन से पढ़ते आए हैं कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने देना कि ना हक खून परवाने का होगा। किस तरह कि शहद की मक्खी बाग में जाएगी, जरदानों पे बैठेगी, शहद बनाएगी, छत्ता बनाएगी, उस छत्ते से मोम निकलेगा, फिर मोमबत्ती आएगी, मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती पे परवाना आएगा, परवाना ना खून। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं मगज को ना मगज तवा फ्राई वगैरह समझ रहा था जो खाते नहीं लक्ष्मी से हम। मगज। हाँ जी मगज। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम नुमान है। मैंने विकी भाई से एक सवाल करना है। जी विकी भाई, मैं गमगीन कॉमेडी करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या किया जाए? ब्यूटीफुल यार। फिक्कियां जुगतां करिया करो। फिक्कियां उसका हाँ, जो अगला बंदा तुहानू घूरी पावे ते अगों आप रोन लग पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक शेर है, चूँकि सर को मैंने अक्सर देखा जिन भी प्रोग्राम्स में हम देखते हैं तो सर की जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए आने से पहले मैंने शेर की जो मद और जेर ज़बर पेश जो थी ना उसको मैंने सही किया कि अगर सर के सामने बोला गया तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। आपने सोचा कि मैकेनिक के पास जा रही हूँ? जी जी बिल्कुल। शेर बिल्कुल सही लगे। एक हमारी नज़र से अगर देखा जाए ना, जो हम चीज़ सीरियसली लेते हैं, जब लफ्ज़ को भी, हर वर्ड को हम उसका हक नहीं दे पाते। लफ्ज़ को नहीं, लफ्ज़ को देखिए, यहाँ से देख ले कि हम उसको उसका हक नहीं दे पाते ना, तो ये मैं समझती हूँ कि ये गलत है, बेइंसाफी। नाइंसाफी। नाइंसाफी। तो अब एक शेर है। तैयारी करके आओ तुसी अल्लाह दे कभी भी नहीं पूरा उतर सकता अभी आपकी तैयारी नामुकम्मल है। ठीक है सर, अभी मैं आपको एक शेर और तो भाभी ने इन्होंने घर सालन देख तो फटाफट दौड़ जाती है। और भाभी ने आके कहती आपके लिए शिमला गई। शिमला नहीं होता, शमला होता है। शिमला वो होता है जो पग में होता है। और भाभी कहती खुदा दा वास्ते खानी खाओ, मैनू ना दसो गल्लां। छुपा दस्ते हिम्मत में राज़े कज़ा है। छुपा दस्ते हिम्मत में राज़े कज़ा है, मिसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। और सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मैं अपने, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं मसल कह रही थी, और मसल कहते कहते जब मेरे जहन में आया कि इस प्रोग्राम को आप होस्ट करते हैं तो मैंने इसका मिसल कर दिया। मुसला, शुक्र करे आपने मुसला नहीं कर दिया। जहाँ तक मैंने सर को देखा है और पढ़ा है, मुझे यही है कि ये उर्दू का मफहूम सही रखते हैं। ये अल्लाह ताला ने सारे पर्दे रखे हुए हैं। मैं सच आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं जाली आजिज़ी का मुजाहरा भी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पर्दे रखे होते हैं। वरना आप यकीन करें कि ना मुझे शेर याद रहते हैं, ना मेरा उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक है, ना मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। बस अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है। सर ये आपके डाउन टू अर्थ होने नहीं, की नहीं, वजह नहीं, नहीं, कोई मैं आजिज़ी का मुजाहरा नहीं कर, मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ। जी क्यों जिद की थी? वही नहीं, पहली बारी जी जुनेद साहब मान नहीं गए ते मनन दे थोड़े थोड़े नलायक हैं पे। मैं किवें आखी गणा मैं आख्या आई कि सर डाडे
सच्चे बंदे आन। और जी मैं जिंदगी की पहली बारी सराइकी झगड़ा देखा। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी गेम की। जी हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए, कौन कौन हिस्सा लेगा? एक तो हो गए आप। अच्छा आपको पता है ये गेम कैसे खेलनी है? सर गेम तो आप खेलते हैं, आपको पता होगा। मेरा नाम नसीम विक्की है, डबल शाह नहीं। मुझे पता है, मैंने देखे हैं आपके सारे ड्रामे। ये ड्रामे करता हूँ, फ्रॉड थोड़ी करता हूँ। अच्छा अब आपके ना पेपर के हिसाब से गेम है। ये अंडे जो है ना ये आपको पेपरों में मिलते रहे होंगे। अब आपने ये खेलना है कि आपने एक अंडा उठाना है और उसको एक टिप करके या 2 टिप करके आपने ट्रे के अंदर उसको रखना है जी। तो जो ज्यादा अंडे रखेगा वही पास होगा। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। डन। और शजर 1 2 3 स्टार्ट। आ जाइए। 1 2 3 4 गुड, वेरी गुड, वेल डन। ये लो। वेल डन, वेरी गुड। मैं खेलता हूँ। ये वाओ, आपसे ही सीखी है सर। टाइम्स अप। ओके कितने हो गए जी? काउंटिंग करो कितने हो गए। आपने 9 बॉल्स डाली हैं इस टोकरी में। अब आपकी बारी है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 3 हो गए भाई, 4 हो गए। टेक्निक अच्छी है आपकी। 5 टेक्निक बहुत अच्छी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ओह नाइस, रिवर्स टेक्नोलॉजी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तसल्ली से। टाइम्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात से क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। हमारे आज के सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के विनर हैं हुज़ैफा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन चलते हैं अपने शोराए कराम की तरफ। जनाब सदर मुशायरा, आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हमने ऐसी तैयारी की है कि इंशाल्लाह आप हर शेर पे दाद नहीं देंगे, इंशाल्लाह ताला ताने ही देंगे। जनाब सदर मुशायरा, आज मियाँ बीवी के मौजू पर बात होगी, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस मौजू पर आप बात करें, क्योंकि ये जो मौजू है इसके ऊपर आपसे अच्छा कौन बोल सकता है। अच्छा भाई, मेरी जुबान को तो लगे हुए ताले, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता। जब हम हथेली पे जान रख के बैठे हैं हुजूर, आप तो सदर मुशायरा हैं। क्या बात है। सही बात। अच्छा चले, मैं ये रिस्क नहीं लेता, मैं आपको नईम ज़रार साहब के 2 अशार सुना देता हूँ। जी इरशाद इरशाद। एक बीवी को कितना कम समझे। एक बीवी को कितना कम समझे। एक बीवी को कितना कम समझे, दूसरी कर चुके तो हम समझे। एक ही जिंदगी में बेगम के, एक ही जिंदगी में बेगम के आदमी कैसे पेचो खम समझे। वाह 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 सर जी, पूरी तख्ती लिख दी थी। क्या बात है, वाह क्या बात। लो जी, आपकी इस शायरी के बाद मैं आगाज करता हूँ। छिलिया किन्नू ते लूण कोई नहीं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह सदरे नसीम विकी शायर साहब। जिथे एक छिले उथे 2 छिल लो, जिथे इनू मिले उथे सानू मिल लो। क्या कह छिलिया किन्नू ते लूण कोई नहीं, जदों दा ब्याह होया सुकून कोई जी आज मुशायरे च सच्चियां गल्लां ही होणगियां। जनाब सदर, आपकी पसंदीदा जो फारसी आप मुझसे हमेशा सुनते हैं, चंद अशार आपके लिए लिखे हैं। बाबा ख्वाहिश दिल है हमदम गमदम नमदम बहारम मुकर्रर। ख्वाहिश दिल है हमदम गमदम नमदम बहारम, हलातम बंदम बंधम समदम कंदम लुटे दम। क्या कहने, लफ्जों से ज्यादा मुंह बुझाना पड़ता है सर। ये शेर कम और मंत्र ज्यादा लग रहा है। किया चारम तुम्हारम बेचारम, चढ़े पहाड़म ले चारम, हुए शिकारन तुम्हारन नकारन बचारन न हमारन कुछारन। क्या बात है,
ये लिखा हुआ क्या था? नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ बोला ही जाता है। अच्छा, हाँ, लिख तो किसी का बाप नहीं सकता ये। तो जनाब सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ, जनाब अपना हमारे जो बराबर में शायर बैठे हैं ये किसी काबिल नहीं है, बल्कि बहुत काबिल हैं। वाह वाह वाह। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि बेतहजीब हैं ये और तहजीब का कोई शेर पढ़े। बहुत शुक्रिया सदर मुशायरा जी। अर्ज किया है। जी जी। शाह कालिए फेर भी नखरे वखांदीए ओ पैसे दे के सबा कमर अखवांदीए। ये शायरी नहीं है, ये शौकिया है। अर्ज किया है। हाँ जी हाँ जी। वखरी गाले रूप कदी भी चढ़िया नहीं, वखरी गाले रूप कदी भी चढ़िया नहीं, सुर्खी पाउडर सत करीमा लांदी। सदरे मुशायरा क्या बात। ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ 9 ਮਨ ਦੀ ਏ ਉੱਤੋਂ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। अर्ज किया है 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫੌਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। वाह 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫੌਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। थे अपना उजाड़ा डालने वाले शायर जो किचनों के किचन तबाह कर चुके। क्या? तो अब इनके बाद बारी है जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं मामा दासपुरी साहब। देखते हैं आज कौन सा बासी कलाम ताज़ा कलाम पेश करते हैं। ताज़ा ताज़ा कलाम। हर गल ते बुड्ढी दे मुंह ते ना हुंदी है, लोकी कहंदे रन मुनी दे तां हुंदी है। क्या कौन है पुरानी फिल्मों के हीरो? दिल नू ये समझा के सबर मैं कर लेना, दिल नू ये समझा के सबर मैं कर लेना, जिथे मार दी मैनू उत्थे छां हुंदी है। उत्थे छां हुंदी है। बेवकूफ नू समझाओ मां हुंदी है। तो जनाब सदर आज हमने एक शायर का इजाफा किया है जो ट्रेन में बैठकर बहुत दूर से सफ़र करते हुए हमारे मुशायरे तक पहुँचे हैं। इनकी शायरी में आपको शायरी कम और ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। हमारा आज का बहुत ही प्यारा शायर बेचारा नवाब। जी बेचारा नवाब। 3 दिन पहले होया मेरा ब्याह, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। वाह 3 दिन पहले होया मेरा ब्याह, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। छई छपा छप 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 छप, छई छपा छप 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 छप। कर दियो विआह पांदा सी मैं खप, कर दियो विआह पांदा सी मैं खप। छई छपा छप 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 छप। कहंदे सी बहुत सोहनी बुड्ढी है, कहंदे सी बहुत सोहनी बुड्ढी है, घुंड चुकिया ते निकली सप। क्या कह लो। पहले दिन कहंदी करदी मैं डाइटिंग, हुण हाथ नहीं रुकदा हप 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 हप। पहले दिन कहंदी कर दी मैं डाइटिंग हुण रुकदा नहीं हप 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 हप। छई छपा छप छई छपा छप 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 छप। लो जी इसी के साथ मैं अपना दावत कलाम देता हूँ जनाब डॉक्टर सादक साहब को जो होम्योपैथिक हैं। इन्हां दे शेर भी मिठियां गोलियां अर्गे ने, ना फायदा ना नुकसान। जी डॉक्टर सादक मेरी जान। ले जी जुनैद सलीम साहब, आपका खूबसूरत रंग चीटा देखकर, क्या बात है। आपके नैन नक्श देखकर, कतलाना और खंजराना आंखें देखकर, खंजराना, और आपकी खूबसूरती देखकर मैंने अपने आप पर क्या शेर लिखा है, क्योंकि आपकी खूबसूरती के सामने किसी की खूबसूरती टिकती नहीं है। तो लिख क्या रहा हूं? क्या? रोज नहा के वेख ले आई। सामने दा मुंह चीटा वेख के अपने मुंह ते चीटा मार ले। क्या बात, बात को बढ़ावा दिया। वाह वाह क्या बात, अच्छी कोशिश। रोज नहा के वेख ले आए, फिसल करा के वेख ले आए। फिसल पै रहा। रंग जरा नहीं चिट्टा होया, सब अजमा के वेख ले आए। डब खड़ब्बा दिसना वा फिल्टर ला के वेख ले आए। क्या जो 2 लाइना लिखियां ने मैनू आप भी नहीं समझ आई मैं की लिखी गल। कहने
उधार लैन वाले लाभी लैने ले ओ मैं बुआ ला के वेख लिया। तो जनाब सदर अब बारी है हमारे उस शायर की जो अपना तोता सिफ्त इंसान है, अमरूद और हरी मिर्च बड़ी शौक से खाते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या कलाम लेकर आए। जी रौनक मिठू साहब। डॉक्टर साहब आपके लिए एक शेर अर्ज किया है जी। कहते कि टुर गए यार मुहब्बतां वाले पीछे ही रह गईयां टेरियां। टुर गए यार मुहब्बतां वाले पीछे रह गईयां टेरियां, चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां ते दो मेरियां। एक शेर हो रहा है जी। अच्छा। जुल्म दा बदल वसिया पै गई दुहाई बदल वसिया ते पै गई दुहाई कोकला छुपा के जुमेरात आई है जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई। तो जनाब सदर अब बारी है हमारी मशहूर शायरा परवीन ठाकर की। देखते हैं क्या कलाम लेकर आई है। जी। सारे टब्बर दी रोटी बनावा, सारे टब्बर दी रोटी बनावा, फिर भी मैं वेली कलावा, वेली को आवा, दे वरते चार ननाना, एक सोरा भी पालो ते पूरी क्रिकेट टीम बनदी है। क्या बात है। छेंदे वरते चार ननाना, एडे रेवड़ नु रज के खवावा, मां प्यो दी सी लाडो रानी, लाडो रानी, इन्हां ने समझ लिया मैनू नौकरानी। सारे टब्बर दी रोटी पकावा, फिर भी मैं वेली कहलावा, फिर भी मैं वेली कहलावा। तो जनाब सदर ये थे हमारे आज के शायर जिन्होंने आपके सामने कलाम पेश किए। तो सबसे जो अच्छा कलाम था हमारी परवीन का, इसने जो पढ़ा है इसके अंदर ज़्यादा कलाम नहीं था, ज़्यादा मजबूरियाँ थी। तो मजबूरी किसको नहीं होती, जिसको मजबूरी होती है समझो वही शायर होता है। क्या बात है, क्या बात वो सियाने कहते हैं, क्या कहते हैं? जागुना को पूछो, मैनू की पता। नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि बुरा वक्त आता तो घोड़े की पीठ पे सवार होके है, लेकिन जाता चूंटी की रफ्तार से है, लेकिन जाते जाते मतलब परस्त और खुदगर्ज लोगों को भी साथ ले जाता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।